فیصل آباد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدواروں کی اپیلوں کا معاملہ۔ سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار جٹ کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ سابق صوبائی مشیر ملک عمر فاروق عبداللہ خان کو 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ جنرل انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات مسترد ہونے کے بعد اپیلوں کے معاملے میں بڑی پیش رفت۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے پی ٹی آئی رہنما اور سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار جٹ کی این اے 100 سے اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ امیدوار پی پی 113 اور 14 عبداللہ دمڑ کی اپیل منظور کرتے ہوئے ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا اور انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی، جبکہ این اے 101 سے عبداللہ دمڑ کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ این اے 96 سے تحریک انصاف کے رہنما رائے حیدر علی کھرل کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ سابق صوبائی مشیر ملک عمر فاروق کو بھی این اے 99 اور پی پی 107 سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز کی این اے 98 سے اپیل پر ریٹرننگ افسر کو کل ٹریبیونل میں طلب کر لیا گیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلے کرے گا۔ فیصل آباد سے 80 امیدواروں نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف ٹریبیونل سے رجوع کیا تھا۔ کیمرامین محمد جنید کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ فیصل آباد نہیں تانزیہ والا ہاکی گراؤنڈ میں ہوگا۔ مقامی قیادت کے طویل بیٹھک کے بعد جلسے کی جگہ ایک بار پھر تبدیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 11 جنوری کو جلسے سے خطاب کریں گے۔ فیصل آباد پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ 11 جنوری کو تانگیہ والا میں ہوگا۔ طویل اجلاس میں جلسے کی جگہ تبدیل کرنے اور انتظامات کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ تانگیہ والا کی قیادت بلاول بھٹو کے جلسے کی جگہ تبدیل کرنے پر نالاں تھے۔ پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر سید عنایت علی شاہ ڈویژن بھر کی پارٹی قیادت میں مشاورت ہوئی۔ جلسہ دھوبی گھاٹ میں کرانا کا فیصلہ ہوا، جو تبدیل ہونے کے بعد اب تانگیہ والا میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے دھوبی گھاٹ میں جلسے کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ جلسہ تانگیہ والا میں ہی ہوگا۔ پارٹی رہنما ڈٹ گئے۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ بلاول بھٹو 11 جنوری کو تانگیہ والا میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ختم کی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ سنایا۔ سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے نااہلی کی مدت میں 5 سال کر دی۔ نواز شریف اپنی 5 سالہ نااہلی کی سزا بھگت چکے۔ قائد نون لیگ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین الیکشن 2024 کے لیے اہل ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ختم کی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ سنایا۔ سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے نااہلی کی مدت 5 سال کر دی۔ فیصل آباد کے سابق ایم پی اے مہر حامد رشید کے خلاف نیب تحقیقات۔ لیگی رہنما مہر حامد رشید کو نیب کے کیسز سے کلین چٹ مل گئے۔ نیب نے مہر حامد رشید کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مبینہ فراڈ کی فائل بند کر دی۔ نیب لاہور نے مہر حامد رشید کے خلاف انکوائری رپورٹس ایف ڈی اے کو بھجوا دی۔ ہیون ولاز مہر اسٹیٹ ڈیولپرز کے خلاف ایف ڈی اے اپنے انتظامی امور کے مطابق تحقیقات کرے۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے ایف ڈی اے کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے امور میں مہر حامد رشید کے خلاف تحقیقات چل رہی تھیں۔ اسکول 10 جنوری سے کھلیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ۔ سردی کے موجودہ لہر کے پیش نظر اسکولوں کے اوقات کا تبدیل۔ 10 جنوری تا 22 جنوری اسکولوں کا آغاز صبح 9:30 بجے ہوگا۔ اسکولوں کے اوقات کا تبدیل، اسکول 10 جنوری سے کھلیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ۔ سردی کی موجودہ لہر کے پیش نظر اسکولوں کے اوقات کا تبدیل کیے گئے۔ 10 جنوری سے 22 جنوری تک اسکولوں کا آغاز صبح 9:30 پر ہوگا۔ اسکول 10 بجے 10 جنوری سے کھلیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ۔ 10 جنوری سے 22 جنوری تک اسکولوں کا آغاز ہوگا۔ صبح 9:30 پر اسکول لگیں گے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں چور ڈاکو بھی دھند کا فائدہ اٹھانے لگے۔ فیصل آباد میں 7 گھنٹے میں ڈکیتی چوری کی 14 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔
फैसलाबाद में चोर डाकू भी धुंध का फायदा उठाने लगे। फैसलाबाद में 7 घंटे में डकैती चोरी की 14 वारदातें रिपोर्ट हुई। मिल्लत टाउन के इलाके में डाकू नोमान से 44,000 नकदी छीन कर फरार। समनाबाद के इलाके में डाकू 10,000 और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। सदर के इलाके में चोर 95,000 नकदी और 9 तोले जेवरात चुरा कर फरार। मदीना टाउन के इलाके में 2 अफराद से 7,000 नकदी और 2 मोबाइल छीन लिए गए। बटाला कॉलोनी के इलाके में मुनीब से 30,000 रुपए नकदी छीन ली गई। पीपल्स कॉलोनी के इलाके में डाकू बिलाल से मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार। मुरीदवाला के इलाके में फैसल से 2 लाख और मोबाइल फोन छीन लिया गया। मुरीदवाला के इलाके में दूसरी वारदात में शहबाज से मोटरसाइकिल छीन ली गई। इसी तरह गुलामाबाद के इलाके में खुरम से मोटरसाइकिल 10,000 और मोबाइल छीन लिया गया। सिटी जड़ावाला के इलाके में 3 दुकानों में नकबजनी के दौरान लाखों का सामान चोरी। निशाताबाद के इलाके में साजिद से मोबाइल फोन और 13,000 रुपए छीन लिए गए। खुड़ियावाला के इलाके में असकर के घर से मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए चोरी। जड़ावाला के इलाके में असद की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। धुंध के दौरान वारदातें रोकने के लिए पुलिस पॉलिसी बनाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स ओपन मार्केट से भी महंगे। घी और चीनी की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। मार्केट में चीनी 130 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए किलो में मिलने लगी। मार्केट में 370 रुपए में मिलने वाला घी भी सस्ते स्टोर पर 420 रुपए में दिया जाने लगा। कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान हो गए। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स गरीब के लिए महंगे स्टोर बन गए। आवाम को रिलीफ के दावे जबानी जमा खर्च तक महदूद हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स में अशियाए जरूरिया की कीमतें मार्केट से भी ज्यादा हो गईं। चीनी और घी की कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान। मार्केट में चीनी 130 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए किलो पर पहुंच गई। घी मार्केट में 370 रुपए से 380 रुपए किलो मिलता है, मगर सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला घी ही 420 रुपए किलो का दिया जा रहा है। दुकानों में सस्ता मिलता है, इधर से महंगा दे रहे हैं। जी जिसके पास कार्ड है उसको सस्ता मिल जाता है, जिसके पास नहीं कार्ड है उसको नहीं मिलता। आटा है वो नहीं आता है, हफ्ता हफ्ता आटा नहीं आता। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ शहरियों के लिए तकलीफ बन गया। एक तो अशिया की कीमतें ज्यादा वसूल की जा रही हैं, तो सस्ती मिलने वाली अशिया स्टोर से ही गायब हैं। सस्ते आटे के सूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी मिलता है तो कभी खाली हाथ लौटा दिया जाता है। शहरियों का शिकवा। ये आटा सस्ता होना चाहिए था, बाहर भी आटा सस्ता कर रहे हो। यूटिलिटी स्टोर ਦੇ टाइम ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਵਾਮ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ में ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ को नहीं मिलता, किसी को मिलता है। शहरियों ने आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का लिंक तकनीकी खराबी के बायस बंद। आटा, चीनी, घी सब मौजूद। सर्वर डाउन होने से रजिस्टर्ड अफराद सस्ते आटे के असूल से महरूम हो गए। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के ऑनलाइन सिस्टम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वर बैठ गया। डिवीजन भर में रजिस्टर्ड अफराद को सस्ती अशिया की फराहमी बंद रही। सर्वर बंद होने से सार्फिन सर्द मौसम में सस्ते आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। हम सुबह नमाज के टाइम के आए हुए हैं, ना नाश्ता करके आए, ना कुछ। बच्चे छोटे छोटे हमारे घर है, पीछे कोई रखने वाला भी नहीं है। दुकानों पे सस्ता कर दे, मेहरबानी होगी, इस नए साल के सदके में कर दे। आटा, चीनी, घी सब वाफिर मिकदार में मौजूद, मगर रजिस्टर्ड अफराद को न मिल सका। कड़ाके की सर्दी में सार्फिन को सस्ते आटे की तलाश। सर्विस बहाल न होने पर खवातीन फट पड़ी। शदीद गुस्से का इजहार, कहा धक्के खाने पर मजबूर हैं, वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मैं 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे आते जलील हो रहे हैं, ना कोई आटा भी नहीं देता। हुकूमत को ये होना चाहिए, सास होना चाहिए, हमारा सास नहीं करते। खवातीन ने वफाकी हुकूमत से अपील की है कि दुकानों पर सस्ता आटा फराहम करने के लिए इकदाम उठाए जाएं ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। झंग के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, खाद बहरान के खात्मे की उम्मीद। 2.5 लाख बोरी यूरिया खाद पहुंच गई। खाद डीलर्स ने फरोख्त का अमल जल्द शुरू करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत के इकदाम रंग ले आए। जंग में खाद बहरान के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई। जिला भर में गैर मुल्की यूरिया की आमद शुरू हो गई। जिला भर में 2.5 लाख बोरी यूरिया खाद पहुंच गई। मजमूई तौर पर गैर मुल्की यूरिया की 5 लाख बोरी जिला के लिए फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत ने तकसीम के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दे दी। खाद डीलर्स का गैर मुल्की खाद की आमद पर खुशी का इजहार। बोले बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ताहम खाद की फरोख्त का अमल जल्द शुरू करने की जरूरत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बर वक्त हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर हो जाए इसकी सेल को खोलने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुरहान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो ये वक्ती तौर पे थोड़ी शॉर्टेज है, थोड़ी रह गई शॉर्टेज, अब अल्हम्दुलिल्लाह 40-50% दूसरा पानी तकरीबन लग चुका है। तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में तमाम
ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। महकमा ज़राअत हुकाम कहते हैं कोटे के मुताबिक खाद फराहमी के मुकम्मल होने के बाद फरोख्त का बाकायदा आगाज किया जाएगा, जिसके लिए पॉलिसी मुरतब की जा रही है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। कम मुनाफा, अदायगियों में ताखीर, किसान गन्ने की काश्त से गुरेजा। शुगर मिल्स ने भी एथेनॉल की पैदावार में इजाफा कर दिया। मुस्तकबिल में चीनी की किल्लत के खतरात मंडलाने लगे। बहरान पर बहरान, ज़रूरी मुल्क में गन्ने की काश्त में रिकॉर्ड कमी, मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार में कमी के खदशात बढ़ने लगे। शुगर मिल्स ने भी चीनी की बजाय एथेनॉल की पैदावार बढ़ा दी। 3 मिलियन टन चीनी के कम तैयार होने का खदशा पैदा हो गया। रवा बरस कमाद की पैदावार 4 लाख एकड़ कम रही। तकरीबन 4 से 5 लाख एकड़ कम रकबे पे गन्ना लगाया गया। इस साल तो उसकी जो मुतवक्का पैदावार है वो भी 4 से 5 मिलियन टन का चीनी कम होने का खदशा है। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि अभी से सद्देबाब किया जाए, ताकि अगर चीनी इंपोर्ट करनी है तो बर वक्त इंपोर्ट की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल तारज़ा कहते हैं कपास पर ज्यादा तवज्जो की वजह से कमाद की काश्त में कमी आई है। मुल्की ज़रूरियत के मुताबिक चीनी की कीमतों के अंदर इस्तेहकाम होना चाहिए, ताकि गरीब आदमी को और पाकिस्तानी अवाम को चीनी अर्जा नरखों पर मिल सके। किसान रहनुमा कहते हैं हुकूमत और मुतलका इदारों ने बर वक्त इक़दाम ना किए तो मुस्तक़बिल में मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगी बिजली और 2023 में दरामदी पाबंदियों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। माली साल के 6 माह में नई मशीनरी की दरामद में 70% से जायद कमी रिकॉर्ड हुई। नई इंडस्ट्री तो दरकिनार, रहा सहा कारोबार भी बचाना मुहाल हो गया। टेक्सटाइल इंपोर्टर्स के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। हुकूमत के दरामदी बिल कम करने की पॉलिसी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी ब्रेक लगा दी। मुल्क में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद 70% से जायद कम हो गई। टेक्सटाइल सनतकारों ने महंगी बिजली, मुस्बत पॉलिसियों के फुकदान को नुकसानदेह करार दे दिया। कहते हैं नई मशीनरी की दरामद मुकम्मल रुक गई है, जबकि पार्ट्स की आमद भी मुतासिर हो रही है। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHM हाजिर खान कहते हैं कारोबारी अफराद के एतमाद की बहाली इंतहाई जरूरी है। जिनकी मशीनरी रास्ते में थी वो भी डिस्टर्ब हो गई, जो उन्होंने ऑर्डर्स किए हुए थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। तो ये मेजर फैक्टर 2-3 चीज़ें थी। एक मेजर हमारी थी इंस्टेबिलिटी, उसके बाद हमारे पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं है। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे से एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। कहते हैं टेक्सटाइल पॉलिसी और रिलीफ की फराहमी से मुल्की एक्सपोर्ट में इजाफा मुमकिन है। अनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो इस वक्त हम अपने रीजन में सबसे ज़्यादा महंगे हैं, जिस वजह से हम एक्सपोर्ट में भी डिक्लाइन कर रहे हैं और इसको स्टेबल करने की इस वक्त सिर्फ और ज़रूरत है, जो कि अभी रिसेंटली भी 4.6 रुपीज़ जो है वो दोबारा एक इजाफा जो है ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सनतकार कहते हैं दरामदी पाबंदी मुल्क को फायदे की बजाय मुआशी नुकसान पहुंचा रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। कमजोर मुआशी पॉलिसियां, सेलर टैक्स की भरमार, बुलंद तरीन शरह सूद से कारोबारी सरगर्मियां मान पड़ गईं। 2023 में शहरियों ने 5.25 खरब बैंकों में रखवा दिए। कारोबारी अफराद ने गैर यकीनी सूरत हाल को सरमायाकारी में कमी की बड़ी वजह करार दिया। महंगाई के तूफान ने कमजोर मुल्की मईशत की मजीद कमर तोड़ दी। गैर यकीनी सूरत हाल ने रहे सहे कारोबार को भी ताले लगवा दिए। अवाम सरमायाकारी की बजाय रकम को बैंकों में रखने पर तरजीह देने लगे। 2023 के दौरान शहरियों ने 5.25 खरब रुपए बैंकों में रखवाए। 2022 के मुकाबले 2023 के दौरान बैंक डिपॉजिट में 74% इजाफा रिकॉर्ड। ताजर कहते हैं तारीख की बुलंद तरीन शरह सूद और सेल्स टैक्स के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो NOCs हैं और जो की हर्डल्स हैं वो इतनी ज़्यादा कर दी हैं कि कोई इंडस्ट्री यहाँ लग नहीं सकती। आपने उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंडस्ट्री के लिए वो ख़त्म कर दी है, और जब वो ही नहीं है तो लोग किस तरह इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरकारी और निजी बैंकों में 4 खरब 424 अरब रुपए की रकम जमा कराई गई। साल 2022 में शहरियों की बैंकों में जमा कराई गई रकम 3 खरब 542 अरब रुपए थी। जनवरी 2023 में 287 अरब, फरवरी में 167 अरब, मार्च में 658 अरब रुपए रकम जमा कराई गई। देखें 740 अरब रुपया जो है वो डिपॉजिट हुआ है बैंकों में इसी वजह से। तो अब आप देखें ये हैवी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये इंडस्ट्री लगे इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ताजिर कहते हैं रुपए की गिरती हुई कदर, महंगी बिजली, गैस बहरान और दीगर मसाइल की वजह से कारोबारी तबके को पहले ही मुतअद्दिद मुश्किलात दरपेश हैं। इन मुश्किल हालात में शरह सूद में गैर मामूली इजाफा मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी पर तबाहकुन असरात मुरतब कर रहा है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। पोलियो से बचाव के 2 कतरे हर बच्चा हर बार। फैसलाबाद डिवीजन में
7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। महकमा सेहत की टीमें बच्चों को कतरे पिलाने का मुकर्रर करदा हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम में 15,36,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 4869 टीमों ने जिला भर में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। महकमे सेहत हुकाम ने 5 साल से कम तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के अज़्म का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम सिंधु ने DHQ अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। साल 2024 की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जारी रहेगी। पैदाइश से लेकर 5 साल तक के 4,19,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने कहा कि जिला में इंसदाद पोलियो मुहिम में माइक्रो प्लान के मुताबिक काम किया जाएगा। शदीद सर्द मौसम में पोलियो मुहिम को एक चैलेंज के तौर पर लिया जाएगा। जंग में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज CO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। MS डॉक्टर शबाब आलम, डॉक्टर एहसन सुलेयाना, डॉक्टर शफकत समेत दिगर अमला भी हमरा था। CO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद का कहना था कि 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 5,61,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 2200 से ज्यादा टीमें पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। चिन्यूट में 5 रोजा पोलियो मुहिम 12 जनवरी तक जारी रहेगी। जिला भर में 2,91,199 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 1,467 खसूसी टीमें तैनात। पहले रोज 1,19,042 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ पूरा किया गया। हुकाम ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स फ्रॉड का एक और केस सामने आ गया। लालिया की फैजी इंटरप्राइजेज नामी कंपनी ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस से बोगस कारोबार जाहिर किया। जाली रिकॉर्ड की बुनियाद पर ये फंड्स क्लेम किए गए। तहकीकात में टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के जंग जोन में लालिया की फैजी इंटरप्राइजेस नामी कंपनी ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए करोड़ों रुपए का बोगस कारोबार जाहिर किया। जाली रिकॉर्ड की बुनियाद पर कंपनी ने रिफंड्स क्लेम कर दिए। तहकीकात में टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। FPR हुकाम के मुताबिक फैजी इंटरप्राइजेस ने टैक्स फ्रॉड के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। टैक्स फ्रॉड करने वाली कंपनी की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। मुतालिका कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि इस केस में मुलव्वस दिगर कंपनीज के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। जंग में अनाड़ी ठेकेदार और शहर का मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट। ठेकेदार ने सीवरेज लाइनों की खुदाई के दौरान सरकारी दीवारें भी गिरा दी। खुदाई करके निकाली गई मिट्टी से RCC-IB सेंटर की 3 दीवारें गिर गईं। जंग शहर की सीवरेज का मेगा मंसूबा अनाड़ी ठेकेदारों के हाथों में होने से रिहायशी परेशान। HMS कंस्ट्रक्शन की जानिब से जंग में सीवरेज के मंसूबों पर काम जारी। सीवरेज लाइनों की खुदाई के दौरान अनाड़ी ठेकेदार ने सरकारी दीवारें गिरा दी। निकाली गई मिट्टी से RCC-IB सेंटर की 3 दीवारें भी गिर गईं। बगैर प्लानिंग की जाने वाली खुदाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉलोनी की भी 2 दीवारें गिर गईं। अहले इलाका अपने घरों में खुद को खैर महफूज समझने लगे। सीवरेज का काम तो शुरू हुआ अच्छी बात है, लेकिन जी जनाब दीवार गिरी ने रात के टाइम इतों अपना मज्जां गावां कुत्ते वगैरह अंदर दाखिल हो जाते। ये सारी नैली अगे ठेकेदार दी वजह तो सानू इंतजामिया जनाब रिक्वेस्ट है कि ये खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी दीवार पाए वो तो ना ढाण। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से दीवार की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। वासा हुकाम की नाअहली फैसलाबादियों पर भारी पड़ने लगी। बिस्मिल्लाह चौक में वासा पंप रिहायशियों और राहगीरों के लिए अजाब बन गया। ताफुन और बदबू से शहरी परेशान। पंप न हटाने से हादसात की तादाद बढ़ गई। बिस्मिल्लाह चौक के बीचों बीच वासा पंप मौजूद। वासा की जानिब से पंप न हटाया जा सका। शहरी आए रोज हादसात का शिकार होने लगे। मकीनों का कहना था कि हम पिछले 3 साल से इस पंप को बर्दाश्त कर रहे हैं। धुंध का मौसम है, रात को ये पंप तक नजर नहीं आता। 1 से 2 बार तो हमने खुद शहरियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। काफी 2-2.5 साल हो गए हैं ये इधर ही अपना इसी तरह मशीन लगी हुई है। हमने काफी मरतबा कंप्लेन भी करवाई है और इसकी वजह से काफी हादसात भी हुए हैं। मकीनों का मजीद कहना था कि अदारों का काम अवाम को सहूलत देना होता है, न कि अजियत देना। बारहा इसके खिलाफ दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। वासा वाले लोगों को अजियत दे रहे हैं। हैवी इलेक्ट्रिक पंप को डायरेक्ट सप्लाई खंबे से आ रही है। कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तकरीबन 3 साल हो गए हैं बंद है। और सबसे अहम बात जो है ना, लास्ट ईयर में ना एक बंदा जो है ना इसकी वजह से ना वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, रात को धुंध की वजह से लोग इसमें टकरा रहे हैं और मोटर जो है ना वो देखें आप ओपन लगी हुई है, जिसकी वजह से ना हाई वोल्टेज पावर मोटर है
اس کو ڈائریکٹ سپلائی جو ہے نا وہ مین کنیکشن سے دی ہے۔ چوک کے بیچوں بیچ پمپ کا ہونا شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہے اور واسا حکام ہے کہ معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ کیمرہ مین ایمان بھٹی کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آبادیوں کو کروڑ روپے کے جرمانے بغیر ٹریفک نشانات اور قواعد سے آگاہی کے لیے اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ شہر میں 26 ٹریفک سگنلز میں سے صرف 4 سگنلز پر سٹاپ لائن موجود ہے۔ فیصل آباد کے شہریوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کروڑوں روپے کے جرمانے، مگر ٹریفک سگنل والے چوکوں پر سٹاپ لائن لگانے کا کسی کو خیال نہ آیا۔ شہر میں 26 ٹریفک سگنل میں سے صرف 4 پر سٹاپ لائن ہیں۔ ٹریفک قواعد سے آگاہی نہ ہونے پر شہری بھی منمانیاں کرنے لگے۔ جہاں سٹاپ لائن موجود وہاں بھی شہری رکنا گوارا نہیں کرتے۔ لائن موجود نہ ہونے سے شہری چوک کے بیچ میں گاڑیاں روکنے لگے۔ وارڈنز کی موجودگی میں بھی ٹریفک بے ہنگم اور بلاک رہنے لگی۔ ٹریفک قوانین سے عدم آگاہی اور عمل درآمد نہ ہونے سے قیمتی جانوں کا ضیاع معمول بن گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یہ مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں ڈی پی او عبداللہ احمد کا پولیس خدمت مرکز، ای سائن ٹیسٹ سینٹرز اور دیگر دفاتر کا دورہ۔ ڈی پی او نے پولیس خدمت مرکز میں مختلف سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے پولیس خدمت مرکز میں مختلف سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا، شہریوں کے مسائل دریافت کیے اور پولیس سروسز کے حوالے سے فیڈ بیک بھی لیا گیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے شہریوں کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بر وقت رہنمائی اور جدید سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہریوں کو بہترین ماحول میں پولیس سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ جھنگ بازار کے مسائل حل کرنے میں پیش سیوریج، ٹریفک اور تجاوزات کے مسائل جلد حل کرنے پر زور دیا۔ امین بٹ کی واسا میونسپل کارپوریشن اور ٹریفک پولیس کے ساتھ میٹنگ، جھنگ بازار میں سیوریج، ٹریفک اور تجاوزات کے مسائل جلد حل کرنے پر زور دیا گیا۔ محکمہ میونسپل کارپوریشن، محکمہ واسا اور ٹریفک پولیس حکام شریک ہوئے، جس پر چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ نے جھنگ بازار کے مسائل کا ذکر کیا اور جلد حل کرنے کی اپیل کی۔ امین بٹ کہتے ہیں کہ شہر کا مسائل ہمارے مسائل ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک سٹی سرکل خالد علیم نے کہا کہ جھنگ بازار میں ٹریفک کے مسائل جلد حل ہوں گے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلوں کے خواہش مند طلباء کا انٹری ٹیسٹ سالانہ امتحانات سے پہلے لیا جائے گا۔ 11 سے 15 مارچ تک انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ لینے کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ امیدوار ایف ایس سی فرسٹ ایئر کی بنیاد پر انجینئرنگ ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے 11 سے 15 مارچ تک انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ لینے کا شیڈیول جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں ڈیپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کے جاری ترقیاتی کاموں کے ہنگامی دورے، الائڈ اسپتال 1 اور 2 میں خام مال کی کوالٹی چیک رپورٹ یومیہ بنانے کی ہدایات۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے جاری کاموں کی انسپیکشن کیا اور تعمیراتی عمل کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں تعمیراتی عمل کے باعث مریضوں کو علاج معالجے میں دقت نہیں آنی چاہیے۔ الائڈ اسپتال 1 کی اپ گریڈیشن کو 31 جنوری تک ہر صورت مکمل کیا جائے گا۔ اضافی ورک فورس لگا کر ڈبل شفٹ میں کام مکمل کرایا جائے۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹس نے پروگرس رپورٹ سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔